Hello everyone, welcome to Chem at the Red Point. Today I will discuss chapter number 6 haloalkane haloarenes. It is very important part associations and regions. I will share with you some important tricks and techniques how to solve the questions. So let's start. The first question is alkyl halides are more reactive toward nucleophilic substitution than aryl halides. Alkyl halides means R single bond X. R is the methyl ethyl group, right? Like CH3 single bond Cl. Aryl halide, that means aromatic rings. That means benzene ring attached to Cl. Got my point? So alkyl halide are more reactive towards nucleophilic substitution than aryl halide. So nucleophile, it can be easily substitute alkyl halide rather than aryl halide. Why? Because of they in the aryl halide they have developed a partial double bond character. Okay, and you can say regenerating structure takes place. That's why it cannot easily nucleophilic substitution reactions aryl halide. But alkyl halide are more reactive towards nucleophilic substitution reaction because of halogen attached. This carbon is the sp3. Okay, ये sp2, ये क्या होगा sp3. So you can say assumption is true. Got my point? So assumption is true. Good. Then reason. Aryl halide have resonance stabilized and passive double bond character. Yeah, obviously. इसके लिए तो वो हो रहा है ना. तो both are correct and correct explanation also. Answer is A. सबको समझ में आया? ठीक है. उसका रीजन नीचे लिखा है तो both are correct explanations. Then question number 2. Question number 2. Benzyl chloride. Benzene ring attached to CH2 single bond Cl. Benzyl chloride is highly reactive towards SN1 reaction. Okay, तो SN1 रिएक्शन आपको मैं बताया था, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है ना. एक होता है स्टेप 1, एक आपका होता है स्टेप 2. 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है ना. स्टेप 1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है. स्टेप 2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन को. ठीक है. तो benzyl chloride is highly reactive toward SN1 reaction because of in the step 1 what will be formed? Benzene ring attached to CH2 plus Cl minus. Yes or no? It is a carbocation. Benzyl carbocation, right? ये बेंजाइल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबलाइज्ड है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा. तो यहाँ पे लिखा होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. तो हम ये बोल सकते हैं assumption is true, reason be true है, and both are correct explanation also. That means option number A is the correct. बोलो सबको समझ में आया? Any confusion? नहीं. Good. अभी जाएंगे आगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टर्शियरी अल्काइल हालाइड undergo SN1 reaction faster than primary ones. तो SN1 का ऑर्डर क्या था हमारा? टर्शियरी, सेकेंडरी, देन क्या होगा? प्राइमरी, क्योंकि वहां पे बनता था कार्बोकैटायन बनता था. जितना मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, तो टर्शियरी मोर स्टेबलाइज्ड होगा, देन होगा सेकेंडरी, देन होगा प्राइमरी. ये उसका ऑर्डर था, ठीक है ना. तो ये भी ट्रू है. टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट. या इसके लिए तो वो स्टेबलाइज हुआ ना. तो हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट. दैट मींस assumption is true, reason also true, and both are correct explanation also. Got it? Then question number 4. Vinyl chloride is less reactive towards nucleophilic substitution.
The carbon chlorine bond has partial double bond character due to resonance. Yes, both are correct explanation also. ये भी true, ये भी क्या है true. Option A is the correct answer. Question number 5. Chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution. Obviously, chlorobenzene benzene ring attached to Cl. इससे chlorobenzene वो easily nucleophilic substitution नहीं हो पाता है. ऐसा क्यों? The lone pair on Cl is involved in resonance with the benzene ring. या इसके पास lone pair है वो resonance में involve कर रहा है. That means यहाँ पे partial double bond character create कर रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं assumption is true, reason भी true है, and both are correct explanation also. Reason are correct explanation to assumption. ठीक है ना? Question number 6. SN1 reaction is favor in polar protic solvent. Yes, true. Protic solvent stabilize carbocation and leaving group. Obviously, ये भी होगा. And both are correct explanation also. Option A is the correct answers. Got it? I2 alkanes are better leaving group than fluoroalkane because of size. ठीक है ना बेटा? तो हमको ये पता है क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन. हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है. फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके बाद क्लोरीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन आएगा, उसके बाद आयोडीन आएगा. तो साइज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से स्टेबलाइज करके रह पाएगा. बात समझ में आया? तो I2 alkane are better living group than fluoroalkane. बात सही है, वो भी ट्रू है. Iodide ion is larger and more stable than fluoride ion. Obviously, both are correct and correct explanation also. इसका मतलब क्या होता है? F minus Cl minus Br minus I minus. तो I minus more stabilized है F minus के वजह से. Why? Because of bigger in size iodide ion. ओके, एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन नहीं है. यदि आपको कोई पूछ दे लिविंग ग्रुप के बारे में, क्या पूछे? लिविंग ग्रुप के बारे में पूछ दे, तो आप क्या बताओगे? इधर देख, मैं बता रहा हूँ. इधर सुनिए, इधर सुनिए सारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ. इधर सुनो, सुनो इधर. इधर देखिए, लिविंग ग्रुप आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन. तो आयोडीन बढ़िया लिविंग ग्रुप बनेगा आज कंपेयर टू ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन बिकॉज ऑफ बिगर इन साइज. गड़ी माय पॉइंट समझ में आया सबको? ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है. ठीक है ना बेटा? तो बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं. तो ध्यान देना. Question number 8. Haloalkane undergo both SN1 and SN2 mechanisms. Yes, ये भी true है, दोनों दिखाता है. The reaction mechanism depends on the structure of alkyl halide and the reaction conditions. ये भी true है, and both are correct explanation also. Option A is the correct answer. The boiling point of haloalkane increases with increasing atomic mass of halogen. Molecular weight increases, increase van der Waals force. ये भी true है, ये भी true है, and both are correct explanation also. Option A is the correct answer. Primary alkyl halide undergo SN2 mechanism more readily. Yes, ये भी true होगा, क्योंकि SN2 का क्या होता है बेटा? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी. जितना लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना बढ़िया होगा SN2 रिएक्शन. रीजन में क्या लिखा है? SN2 reaction occur through a backside attack and are sterically hindrance. Yes, ये भी सही है. तो both are correct and correct explanation also. तो सबका समझ में आया? अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं. देखिए इधर, इन क्लोरोबेंजीन द CCl बॉन्ड is shorter than in CH3Cl. इसका एक ही रीजन है
क्लोरोबेंजीन के पास क्या होता है ना, जो CCl होता है, मैं खुद बना के दिखा रहा हूँ, देखिए इधर ध्यान से देना बेटा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये CBSE क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई। तो यहाँ से क्या होता है, लोन पेयर सिग्मा पाई यहाँ पे रिजोनेंस करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर चले आता है, लेकिन CH3Cl के पास तो नो रिजोनेंस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता ही नहीं है। तो हमको ये पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। इन क्लोरोबेंजीन तो CCl बॉन्ड इज शॉर्टर देन CH3Cl, बात तो सही है, या इसको ट्रू लगा देंगे। देन रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन गिव्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू द CCl बॉन्ड, ये भी बात सही है, and both are correct explanation also, option A is the correct answer. Then question number 12, halo alkane are more reactive toward nucleophilic substitution than alkane, बात तो सही है, वो भी ट्रू है। The halogen group is electronegativity and create a partial positive charge on the carbon atom. ये भी true है, and both are correct explanation also. Option A is the correct answer. Then aniline cannot be directly prepared from chlorobenzene by reaction with ammonia. बात सही है. The aromatic CCl bond is very stable due to resonance. ये भी सही है. Both are correct explanation also. Then SN2 reaction proceed with inversion configuration. बात सही है. SN2 reaction occur through a single transition state with backside attack. ये भी सही है. Both are correct explanation also. Nucleophilic substitution reaction are faster in alkyl iodide. Obviously बात है, उसका साइज बड़ा है तो इसमें फास्ट ही होगा ना. यहाँ पे लिखा होगा बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन एंड ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सुनो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन सिस्टीन aryl halide are less reactive in nucleophilic substitution reaction than alkyl halide. ये तो मैं बोल चुका हूँ पहले से, ये ट्रू होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस होता है ना उसमें. aryl halide are stabilized by resonance, यहाँ पे आ गया ना resonance, and CX bond is shorter, या sp2 कार्बन होता है, पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, शॉर्टर ही होगा. both are correct correspondence also, option A is the correct answer. Then question number 17. In SN1 reaction, rate depends on the concentrated of substrate. The rate determining step in the formation of the carbocation. Yes, बेटा जी, SN1 reaction में दो स्टेप रिएक्शन होता है, एक बनता है आपका कार्बोकेटन बनता है, ठीक है ना, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कार्बोकेटन बनाता है था. तो SN1 reaction rate depends only on concentrated of substrate. That means ये substrate होता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. इधर देखिए प्लीज, इधर देखो भाई, ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये लगा है आपका आर ग्रुप लगा है, ये क्या लगा है बेटा, आर ग्रुप लगा है. तो स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है. ये कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबलाइज्ड है और इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं. ये स्लो होता है, क्या होता है बेटा, स्लो होता है. सो स्लो स्टेप ही निकालते हैं, RDS पार्ट निकालते हैं, ठीक है ना. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यस यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बात तो सही है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दैट मींस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू assertion. बोलो कर पाओगे. देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे. इन SN2 रिएक्शन द रेट is affected by concentrated on both substrate and nucleophile. Yes, obviously वो डिपेंड करता है. SN2 reaction is a single step bimolecular reaction. Obviously ये भी होगा, and both are correct explanation also. Option A is the correct answer. Chloromethane react with aqueous KOH to form methanol. Definitely ये बनता है, ये भी ट्रू है. OH minus hydride ions replace Cl minus ion in a nucleophilic substitution reaction, बात ये भी सही है. both are correct explanation, तभी तो बनेगा. हाँ, halogen are orthopara directing but
एक्टिवेटिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बात सही है। halogen atoms show plus m resonance donating and minus I electron withdrawing, बात वो भी सही है, and both are correct explanation also, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 21 के पास चलते हैं। वो क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान से देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। टोलुइन रिएक्ट faster than benzene with Cl2 in presence of FeCl3 Cl, ठीक है ना। तो बात तो सही है, वो ट्रू होगा। CH3 ग्रुप एक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थोपैरा पोजीशन, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 22 बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड हाइड्रोलिसिस, बात तो सही है। बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। बोलो समझ में आया सबको, बोलो सबको समझ में आया, बोलो। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ध्यान देना। हालोवारिन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन हालो अल्केन, वेरी गुड, ये भी ट्रू है। बेंजीन रिंग एक्टिवेट द पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। लेकिन स्टूडेंट्स लिसन टू मी, यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, इसके साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। बोथ आर करेक्ट हो सकता है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, इसीलिए हम ऑप्शन बी को ही चूज करेंगे, ऑप्शन बी को ही चूज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन is less reactive than chlorobenzene toward nucleophilic substitution, बात तो सही है। CF bond shorter and stronger due to the high electronegativity of fluorine, बात ये भी सही है। Both are correct explanations, ठीक है ना भाई। SN1 mechanism is generally observed in tertiary alkyl halide, tertiary carbocation form is very stable, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Both are correct and correct explanation also. In chlorobenzene, the CCl bond is shorter than in alkyl chloride, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि क्यों शटर होता है, ठीक है ना, रिजोनेंस के वजह से होता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। इसका आंसर होगा ए होगा, बोथ आर करेक्ट। 27 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हालाइड विथ अल्कोहलिक KOH गिव अल्कीन, यस ये भी सही है। अल्कोहलिक KOH प्रोवाइड OH माइनस आयन which which abstract beta hydrogen to attack to beta hydrogen, ये भी सही है। and both are correct explanation also, option A is the correct answer. In nucleophilic substitution secondary alkyl halide can flow either SN1 or SN2, yes it will happen, true. Stability of carbocation and steric hindrance both influence mechanism, yes option A is the correct answer. Alkyl fluoride are less reactive than alkyl iodide in substitution, ये भी true है। CF bond is stronger than CI bond, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे ये स्ट्रॉन्गर है इसलिए नहीं जाता है ना, CI तो बहुत ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका बोलो ना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना, उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा ना। समझ में नहीं आया मेरा बात। CF CCl CBr CI, CI का बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इजीली ब्रेक डाउन करेगा, CF का बॉन्ड लेंथ छोटा है तो इजीली ब्रेक नहीं करेगा, घूम फिर के उधर आओगे ना, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 30 का बात करेंगे, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 30 का बात करेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ हालाइट इन SN2 रिएक्शन, वेरी गुड, वो सही तो है, अभी तो बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। स्टेरिक हिंड्रेंस अफेक्ट द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बात ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस, ठीक है ना। विनाइल क्लोराइड रेजिस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, डेफिनेटली करता है। CCl बॉन्ड स्टेबलाइज रेजोनेंस, डेफिनेटली, both are correct, both are correct and correct explanation also, option A. Chlorobenzene is less reactive toward nuclear substitution reaction benzyl, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी सही है, ये भी सही है आपका। बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN1 SN2 रिएक्शन, बात सही है, अराइल हैलाइड नहीं करेगा, उसके लिए sp3 कार्बन चाहिए, sp2 कार्बन में नहीं होता है SN1 SN2, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं।
sp2 कार्बन में नहीं होता है, sp3 चाहिए उसके लिए। द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन इज अनस्टेबलाइज्ड, बात तो सही है, ये अनस्टेबलाइज्ड है इसलिए वो नहीं करता, ये ऑप्शन ए में ही जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? डीडीटी इज हालोजिनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस यस। डीडीटी इज प्रिपेयर फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड, बोलो चार वो भी सही है, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान देना। In the reaction of ethyl chloride with aqueous K waste, ethanol is formed. Yes, होता है। Nucleophilic OH minus substituted Cl minus ion. Yes, both are correct explanation. Option A is the correct answer. SN1 reaction involve a polar. SN1 reaction involve a planar carbocation intermediate. Yes, SN1 में जो कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, वो प्लानर है क्योंकि OSP2 कार्बन है, इसलिए वो प्लानर है। प्लानर कार्बोकेटायन अलाउ रेसिमाइजेशन इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सब बोलो समझ में आया सबको? ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको कर दिया ना, आराम से बैठोगे, आराम से बैठोगे, एग्जाम इसके अंदर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे रखता हूँ मैं, ठीक है, अब इतना करके जाओ ना, सारे चैप्टर डालूंगा, सिर्फ आप अच्छे से पढ़ो। Methyl bromide is more reactive than methyl fluoride in SN2 reaction. Yes, 100% होता है more reactive, क्योंकि ब्रोमीन है ना इधर, इधर ब्रोमीन है इधर फ्लोरीन है। अभी तो बताया था साइज बढ़ता है तो, बोलो ना निकलो, अभी तो बताया था साइज बढ़ता है तो इट कैन बी इजीली, बोलो। तो बी आर माइनस बिगर, यहाँ पे लिखा है ना इधर बेटर लिविंग ग्रुप देन एफ माइनस, तो ऑब्वियसली बात है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। In SN1 reaction, rearrangement are common. Obviously, SN1 reaction कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन लेस स्टेबलाइज्ड से मोर स्टेबलाइज्ड मूव करता है, तो रीअरेंजमेंट करेगा, पॉसिबिलिटी होगा तो करेगा। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कैन अंडरगो हाइड्राइड और अल्काइल शिफ्ट, ऑब्वियसली ये भी करता है, उसका बहुत सारा एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, आगे उसका वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। C2H5Br reacts with alcoholic AgNO3 to give precipitate. AgNO3 react with the Br to form the, yes, both are correct also. Option A. Then question number 40. Haloalkane are denser than water. Yes, ये भी true है. Halogen atom increase the molecular weight and density. Yes, ये भी true है. Option A is the correct answer. 41. Vinyl chloride does not give nucleophilic substitution reaction easily. Yes, ये भी सही है। The carbon being the halogen is sp2 hybridized at a resonance stabilized, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए is the correct answer. Haloarenes can be converted to phenyl, sorry, haloarenes can be converted to phenol under Dastic condition. Dastic condition means high temperature, high pressure, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हेल्प टू ओवरकम द रिजोनेंस स्टेबिलाईज, यस हम लिखा है डास्टिक मतलब इधर लिखा है, इधर लिखा है डास्टिक मतलब, ठीक है ना, तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक अमोनिया टू फॉर्म इथाइल अमीन, करेक्ट। अमोनिया act as a nucleophile and replace the halogen, correct, both are correct explanation also. Option A is a correct answer. बोलो इतना समझ में आया सबको? देन क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन नंबर 44। हाइड्रोलिसिस ऑफ टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड इज फास्टर देन एन ब्यूटाइल, अरे ये टॉट है ना, टर्शियरी का बात चल रहा है अभी, तो ऑब्वियसली बात ये ट्रू होगा, ठीक है। टॉट ब्यूटाइल का अब तो लिख दिया, नीचे भी लिख दिया वो चीज, तो वो ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्ट टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यस ऑब्वियसली। द कार्बन CCl बॉन्ड इन अराइल हालाइड इज sp2 hybridized, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। halogen in the side chain of aromatic compound is reactive, yes, it behave like alkyl halide not aryl halide, yes, option A is the correct answer.
रेजोनेंस ऑफ फेनॉल विथ NaOH फ्रॉम सोडियम फेनॉक्साइड, ऑब्वियसली वो बनाता है। फेनॉल इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ऑफ फेनोक्साइड आयन, ये भी सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। SN2 रिएक्शन लीड टू इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन, अभी बताया था मैंने, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, बैक साइड करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, यस, बैक साइड मतलब वो लिविंग ग्रुप को अपोजिट साइड में अटैक करता है, ये भी सही है। एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। Haloalkane are soluble in organic solvent, true. Both are non-polar and like dissolve, like, ये भी सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 50, aryl halide requires strong nucleophile and has condition in substitution, true. CX bond in aryl halide is strength by resonance, ये भी सही है, both are correct explanation also, okay, both are correct explanation also। स्टूडेंट्स 1 to 50 क्वेश्चंस, पूरा आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको अच्छे से करो, आप नोटबुक में लिखो, ठीक है, खुद से बनाओ, ठीक है। नहीं बन रहा है तो देखो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर छूट रहा है, किस सब टॉपिक आपसे नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे सारे कवर किया हूँ एक चैप्टर के अंदर। तो आप अच्छे से 50 क्वेश्चन को खुद से करिए, नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये क्वेश्चन सारा फिर से बता दीजिए, मैं आपको वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर देना, भूल मत जाना, ठीक है, थैंक यू।